यस मैम। यस मैम। बताइए, स्टार्ट आप लोग कीजिए. यू पार्टिसिपेट एंड आई विल इंटरप्ट ओनली व्हेन यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके, बिकॉज आई हैव डिस्कस दिस इन क्लास. एकदम स्क्रैच से नहीं, पर आप जहां पे गलत होंगे या जहां ऐड करना होगा, आई विल ऐड इट. यू डोंट वरी फॉर दैट, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट. तो टेल मी, स्टार्ट करो. कृष्णा तुम बताओ. सैलरी स्ट्रक्चर. मैम मैंने नहीं पढ़ा है, बस जितना आप लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं वो पूरा मेरा कंप्लीट है, और बस ये इसीलिए बोले हैं कि रिपीट कीजिए तो मैं समझ लूँगा। ठीक, सैलरी को इजीली पढ़ने के लिए जब भी आपके पास कोई सैलरी का स्ट्रक्चर दिया, सैलरी आती है, से फॉर एग्जांपल यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन and there you join at a CTC of 4 lakh. Okay, you join at a CTC of 4 lakh. Then that salary, the entire salary, that has certain components in it. These components are provided in your salary structure for a certain reason. There is a lot of contemplation, a lot of analysis, due to which certain component is provided to you in your salary structure. तो अगर 4 लाख आपकी CTC है, what is CTC? Cost of the company. Cost to company. Cost Of the Cost to company. company. Sunny, this is incorrect. Cost of the company नहीं होता है, cost to company. Cost to company. इसका मतलब कि अगर आपकी CTC 4 लाख है, this means that for you to be hired by the organization, the company is paying on you 4 lakh per annum. Okay, 4 लाख per annum का खर्च किसी कंपनी को आपको हायर करने में आता है. This is the very meaning of cost to company. And when you are given a salary, there is a salary breakup. मतलब जब आप किसी का भी रैंडम गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, किसी का होना जरूरी नहीं है. And after this class, do one thing, that you just download a salary slip from someone's, from any random salary slip from Google. You'll get a clear concept of what the components are meant for after this class. सैलरी को पढ़ने के लिए हम ब्रॉडली उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. 4 कैटेगरीज में. कौन से 4 कैटेगरीज में? पहला होता है बेस पे. The second one is allowances. The third one is benefits and incentives. The fourth one is rewards and recognition. The first one is base pay. What is base pay? What is base pay? You must have heard about basic salary. No answer at all. मैं फिक्स अमाउंट भी बोल सकते हैं. और see, base pay is the basic salary, which is the fixed amount of salary given to you. This doesn't change very often, and this doesn't change until you have reached another level or you have completed a year when your basic is changed. आपकी जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा था कि सैलरी कट हुई थी. Yes, ma'am. तो उसमें बेसिक सैलरी से छेड़छाड़ नहीं की जाती है. What is cut? There is a cut on your allowances and benefits. Okay. Yes, ma'am. So basic salary is the fixed part of your salary. This is monetary. Why I am mentioning this monetary and non-monetary? It is because there are certain components of salary which are monetary and certain components which are non-monetary. And to your surprise, even the non-monetary part is as important in your salary as is the monetary part. ठीक है? यानी कि बेसिक सैलरी जो होता है वो फिक्स्ड सैलरी होती है और वो मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी हम उसको पैसे में नाप सकते हैं. ठीक है? जो नॉन मॉनेटरी पार्ट और भी चीजें होती हैं जो नॉन मॉनेटरी पार्ट होती है. बेसिक सैलरी इज द फिक्स्ड पार्ट एंड इट इज द मॉनेटरी पार्ट. Next you come to allowances.
See, एक क्वेश्चन देते हैं, तुम बनाओ कृष्णा, and then it will be more clear to you. Sunny and Ruchi, both of you also make. I think Yes, ma'am. I've made this. I've made you do this in the class also, but let Krishna do it for the first time. देखो, बेसिक सैलरी 40 से 50% होती है टोटल सैलरी की मोस्टली। अभी जो न्यू लेबर कोड आया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उसको 50% कर दिया है, लेकिन ऐसे 40 से 50% होता है। तुम बनाओ, अगर सीटीसी 4 लाख पर एनम है, ठीक है, राइट, सीटीसी इक्वल्स टू 4 लाख पर एनम, मंथली सैलरी कितनी होगी? बताओ, तुम बताओ कैलकुलेट करके। मैम 12,000। 12,000 मंथली कैसे होगी? 4 लाख पर एनम सैलरी है, यानी 12 महीने की सैलरी कितनी है? 4 लाख। 4 लाख। तो महीने की सैलरी के लिए क्या करोगे? उसको 12 से डिवाइड कर दोगे बस। यस मैम। कितनी आई? 13,200 आ जाएगा 33,000। 33,000, ठीक है। यस मैम 33,000। 33,000 आ जाएगा। अब उसको मान लो 50 कि नहीं, रुको वेट, उसको 50 से। मान लो कि कंपनी की ये पॉलिसी होती है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि उसको बेसिक का कितना परसेंट रखना है। वो 40 भी रख सकती है, 50 भी रख सकती है, 55 भी रख सकती है, 45 भी रख सकती है। मान लो कि 40% है, तो फिर अब इस 33,000 का 40% निकालो, कितना होगा बताओ? 13,200। ठीक है, 13,200 उसकी बेसिक सैलरी हो गई। अब Yes, तुम ma'am. समझ सकते हो कि 33,000 जिसकी मंथली सैलरी है, the employee whose monthly salary is 33,000, उसकी बेसिक तो सिर्फ 13,200 है। The rest part is all about allowances and benefits. You getting my point now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका यही मतलब हुआ कि बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो अलाउंसेस और बेनिफिट्स है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरीके से बेसिक सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। Now, had you been in class, I would have explained you better with government examples also, but it's difficult here. Sometimes when you're in class, I'll explain this to you. Next, we move on to allowances. देखो, the best part about studying allowances is that you can make out the usage or you can make out the use of a particular allowance in the organization only by looking at its name. अलाउंस क्या होता है? अलाउंस वो पार्ट है जो ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी दिया जाता है, ठीक है? इट इज गिवन ओवर एंड अबव, ये दिया ही जाएगा। जैसे मेडिकल अलाउंस अगर दिया जाता है तो उसके लिए आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है, ये कंसिडर्ड है। द गवर्नमेंट सॉरी द एम्प्लॉयर प्रिज्यूम्स कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ तो इसका मतलब है कि आप बीमार पड़ेंगे, so it is obligation on the employer to compensate you for the medical expenses, for the medical expenses of yours and your family. समझ में आई बात? तो allowances are always given. allowance के बारे में जो बातें याद रखनी है वो ये है कि ये वेरिएबल होता है। Why is this variable? बेसिक सैलरी फिक्स्ड थी, अलाउंस फिक्स्ड क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी वेरिएबल होता है, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब ऑल्सो, कि किसी जॉब का क्या नेचर है उस हिसाब से उसको क्या अलाउंस दिया जाना चाहिए। ये वेरिएबल होता है और ये मॉनेटरी है। Yes, ma'am. तो नेम सम अलाउंसेस। House rent allowance, ओके, हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट, CCA, मतलब ठीक। city compensating allowance, गुड, सिटी कॉम्पेंसेटरी leave travel allowance, अलाउंस, education allowance,
Education books and allowance, periodical allowance, uniform allowance, meal meal allowance, allowance, entertainment allowance, meal allowance, travel allowance, और इस तरीके का जितना तुमने बताया ये तो कॉमन फॉर्म्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप का अलाउंसेस ऑर्गेनाइजेशन देती है और अपने इसलिए देती है, इस हिसाब से देती है जिस हिसाब से उसको काम होता है। जैसे आपने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर्स का नाम सुना है, यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं वो लोग, yes ma'am, यस मैम। सुने होंगे। हर साल यूपीएससी का एग्जाम होता है, कुछ लोगों को आईएफएस मिलता है। So when these people, these officials, when they are posted in India, they get their salary on Indian payroll. But once they are posted outside India, outside India, you cannot survive on the same cost of living. Say, for example, you're sent to America or you're sent to other nations where cost of living is higher than that of India. In that case, you need to be compensated with foreign allowance. ये Indian government देती है foreign allowance, ठीक है? Foreign allowance देती है गवर्नमेंट, और वो फॉरेन अलाउंस इसलिए देती है ताकि वो वहां पर रह सके आराम से। इट्स टू कॉम्पनसेट फॉर देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन लोगों को डेंजर अलाउंस भी मिलता है, ये भी वियर्ड है, ये सब आप लोग नहीं सुने होंगे। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि अलाउंस बहुत टाइप का होता है और यूज के हिसाब से होता है, तो you should understand that there are many that I'm telling you and more than many that you do not know. इसलिए try to read more and more. डेंजर अलाउंस, इन्हीं लोगों को यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोगों को डेंजर अलाउंस दिया जाता है, लेकिन हर कंट्री के लिए नहीं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जिन कंट्रीज को डेंजर में रखा गया, जैसे कुछ कंट्रीज बताइए जहां इंडियन डिप्लोमेट्स को खतरा हो सकता है। चाइना, पाकिस्तान, गुड, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भी कुछ कंट्रीज हैं जो उनके फॉरेन पॉलिसी में चाइना, I have to look at it, but Pakistan there it is sure, Afghanistan it is sure. तो इन कंट्रीज में जब वो जाते हैं तो उनको कुछ पैसा डेंजर अलाउंस के तरीके से बढ़ा के दिया जाता है, yes ma'am, because there is a Ma'am, constant threat, हाँ, no, because there is a constant threat of their for these officials. So it's kind of a motivation, it's kind of keeping them free from mind. It's like that. Okay, next, allowance से समझ में आया? Alvina. Yes yes ma'am. मैम। Next, move to benefits and incentives. Next, you move to benefits and incentives. इंसेंटिव छोटा जानना है आपको, कम जानना है, पहले हम इंसेंटिव बता देते हैं। देखिए, इंसेंटिव का मतलब होता है, इंसेंटिव इज ऑलवेज मॉनेटरी। इंसेंटिव मीन्स अ मॉनेटरी मोटिवेशन, ठीक है? इंसेंटिव इज अ मॉनेटरी मोटिवेशन। इसका मतलब आपने जनरली ये सेल्स वगैरह का जो जॉब होता है, उस सेल्स के जॉब में आपने ये देखा होगा कि अगर उनको 3.5% 3.5 लाख उनको सैलरी दी जाती है सीटीसी, कभी निकाल के देखना, या तुम्हारे सीनियर्स का जिनका प्लेसमेंट हो, अब तो तुम लोग भी धीरे धीरे सीनियर हो रहे हो, तो ट्राई हैविंग इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन लर्न मोर, गेट आउट ऑफ दैट कॉलेज वाला फर्स्ट ईयर वाला थिंग। ओके, हाई टाइम यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वुड बी एम्प्लॉइज। तो हमेशा हर चीज किताब में मिले ये जरूरी नहीं है, आस पास की चीजों के लिए अपने आँख कान खुले रखिए। सो जस्ट कोई भी कंपनी आती है ना, तो आपके जो सीनियर है उनका जॉब डिस्क्रिप्शन आप अपने फोन पे मंगा लीजिए, व्हाट्सएप पे, एंड उनकी सैलरी को असेस करना शुरू कीजिए। इंसेंटिव वाला जब चीज देखेंगे आप, जैसे कि 3.5 लाख पर एनम आपको दिया जाएगा सैलरी, और उसमें लिखा रहेगा 2.5 फिक्स्ड, 1 लाख इंसेंटिव। मतलब दोनों मिला के 3.5 हो गया। उसने बता दिया कि सीटीसी 3.5 है, लेकिन आपकी फिक्स सैलरी कितनी है? सिर्फ 2.5। ओके, एंड फॉर दिस 1 लाख, for the next 1 lakh, you have to achieve the target which is fixed by the company. Okay, so incentive is something which is there to enthuse you further. आप में और motivation देने के लिए, आपको और further competitive बनाने के लिए incentive दिया जाता है, ठीक है? ओके, अब आप देखिए,
ओके, आप कभी यहाँ गए होंगे किसी कपड़े के शॉप पे, आप किसी बड़े कपड़े के शॉप पे जाएंगे ना, जहाँ पे कि काफी सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सेल्समैन या सेल्स वुमन होता है वो आपको, आप अगर कुछ खरीदने जाते हैं, दे विल रिसीव यू विथ वार्मथ, ठीक है, दे विल रिसीव यू विथ वार्मथ, एंड आफ्टर यू आर डन विथ बाइंग ऑल योर क्लोथ्स, they will come along with you with the cloth with you to the counter, और वहां पर वो बिलिंग खुद से करवाएंगे आपकी कि ये सर का इतना पैसा हो। देखा है कभी? यस मैम। यस मैम। क्यों कराते हैं ऐसा? क्योंकि हर सेल्समैन का, हर सेल्स वुमन का एक टारगेट फिक्स्ड होता है, समझ में आई बात? उनको इंसेंटिव मिलती है कि अगर आप इतने कस्टमर्स को ल्योर कर सकते हैं, आप इतने कस्टमर्स को सामान बेचेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी आपके सैलरी के ऊपर से दिया जाएगा, ठीक है। जोमेटो से, स्विगी से पार्सल मंगाते हैं आप लोग? यस वो- मैम। Yes, ma'am. वो बोलता है ना कि रेटिंग कर दीजिएगा, यस मैम। बोल के जाता है। क्यों बोल के जाता है? क्योंकि उस रेटिंग का पैसा मिलता है उसको, ठीक है, उस रेटिंग का नंबर ऑफ रेटिंग्स व्हिच इज फिक्स्ड बाय द कंपनी, उस रेटिंग का पैसा दिया जाता है उसको। तो दिस इज काइंड ऑफ इंसेंटिव कि तुम जितना पार्सल पहुंचाओगे उतना तुमको महीने में एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Next, you come. This was incentive. Now you come to the benefits part. बेनिफिट्स। Benefits. देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि benefits are primarily for welfare of the organization. Benefits monetary और non-monetary दोनों हो सकता है. It can be monetary or it can be non-monetary. It can be for short term. It can be for long term. It could be free of cost or it could come at concessional price. It could be provided inside the organization or it can be provided outside the organization. समझ में आई बात? Benefit का primarily the benefits have been designed for welfare of the organization, sorry, welfare of the people. अच्छा, you tell me. अच्छा, बेनिफिट्स का कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे आपको लगता हो कि कंपनी कुछ फैसिलिटीज जिसको हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं, बट इन एचआर टर्म वी विल कॉल इट बेनिफिट्स। बताइए। मैम पीएफ जो देता है वो फिक्स होता है। अच्छा, तो ठीक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट बेनिफिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स माने जो गवर्नमेंट देती है और मैंडेटरी है, वो देना ही देना। जैसे तुमने बोला अभी पीएफ, ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट है, ये देना ही है किसी एम्प्लॉयर को। उसके अलावा मैटरनिटी लीव, ये भी स्टैट्यूटरी है। ईएसआई, ये भी स्टैट्यूटरी है। बट वेयर द मैटर रिमेन्स इज कि जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है, यानी कि जो कंपनी अपने मन से देती है, these benefits, these are good to have in the organization. इसको ऐसे समझो, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप यहाँ आते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको स्टेशनरी से पूरी होती होगी, है ना? बहुत सारी चीजें, जैसे फाइल, जैसे पेंसिल, पेन्स, रूलर, फोटोस्टेट, जेरोक्स, स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है, ईमेल्स, उसका प्रिंट आउट निकालना एंड मेनी मोर थिंग्स। क्या ये एक बेनिफिट के तरीके से नहीं देखा जा सकता है? ऐसे फॉर एग्जांपल कि पाटलिपुत्रा ब्रांच में नीचे एक स्टेशनरी का शॉप खोल दिया जाए, एक कैंटीन खोल दिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि घर से नहीं आते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, तो उनको ये चीज बेनिफिट की तरह लगेगी कि वो आएंगे, उनको ये टेंशन नहीं होगा कि वो मतलब उनको घर में खाना बनाना है, ठीक है। इन दैट केस दे विल कम टू कॉलेज 15 minutes early. They can have their meal in 15 minutes and they can rush back to class. ठीक है। मान लो कि कैंटीन तुमको सब्सिडाइज्ड रेट पे खाना दे रही है, मान लो
सब्सिडाइज्ड रेट पे। यानी अगर कोई मील फुल फ्लेजेड तुमको पाव भाजी का उसको कॉस्ट 50 रुपीज दे रहा है, तुमको वो 30 रुपीज में देगा। दिस इज स्टिल बेटर, दिस कैन स्टिल बी कॉल्ड एज बेनिफिट, बोला Yes, जाएगा। ma'am. तो बेनिफिट Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेनिफिट ऐसा ही होता है। बेनिफिट इज देयर टू प्राइमरीली फॉर वेलफेयर पर्पस। ठीक है, वेलफेयर पर्पस के लिए बेनिफिट्स होता है, जैसे कि कंपनी का अकोमोडेशन, जैसे कि कंपनी की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे कि पेड वेकेशन, जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस, ओके, crèche facility. There are so many women employees who are working in the organization. If they have children, it will be better if the organization is taking care of them by providing a crèche in the office itself and appointing number of ayahs and maids in that who will take care of the child. और ये बहुत सारी कंपनी करती भी है, बहुत सारी बैंक भी करती है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट कहलाती हैं। ओके, Yes, ma'am. तो बेनिफिट स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी दोनों होता है। जो स्टैट्यूटरी होता है वो कंपल्सरी होता है, जो नॉन स्टैट्यूटरी होता है दैट इज गुड टू हैव, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉन द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट इट कैन इन्वॉल्व एंड its paying capacity. Okay, Krishna, you getting? Yes, ma'am. Last point, you come to rewards and recognition. Rewards and recognition समझने से पहले कैसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन काम करता है? आप मैस्लो की थ्योरी पढ़े हैं, नीड हायरार्की थ्योरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें एक सेल्फ एस्टीम है ना? Yes, ma'am. Self-esteem needs. सबसे नीचे क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड, उसके ऊपर Physiological. फिर Safety safety need है. सिक्योरिटी नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Self-actualization. Self-actualization. When you come to self esteem needs, self esteem मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। See, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है, आज भी वो पायनियर थ्योरी है मोटिवेशन की। अगर उसमें सेल्फ एस्टीम को एक इतनी इंपॉर्टेंट जगह और हायर ऑर्डर नीड में दिया गया है, तो इट मस्ट बी बिकॉज ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय दैट नीड। रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन इसी तरीके से काम करता है। हम सबको अच्छा लगता है ना अगर कोई हमें रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा फील कराता है, अप्रिशिएट करता है हमारे काम के लिए। Yes. Okay, say I am a teacher, okay, I come to your class, I will definitely feel good if somebody recognizes me कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही हैं। अच्छा ही लगेगा, एज ए ह्यूमन अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि मे बी आई विल बी मोटिवेटेड फर्दर टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर। ठीक है, आई विल वर्क हार्डर और इम्प्रूविंग माई सेल्फ कि हाँ बच्चों को अच्छी लग रही है मेरी पढ़ाई, तो और मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा तो मैं काम करना या पढ़ाना बंद कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है। बट रिकग्निशन विल सर्टेनली ट्रिगर माई मोटिवेशन लेवल। यही होता है एम्प्लॉइज के साथ भी कि अगर एक प्रोजेक्ट में तुमने अपनी बहुत जान पिलाई है, बहुत मेहनत से काम किया, बीन वेरी ऑनेस्ट, and the team member, you're having a team meeting and the team member will pick you up in the middle of meeting and says कि कृष्णा ने बहुत अच्छा काम किया है, he has been throughout a very good person, he has been a very good employee throughout। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि you will वो feel next better, time और अच्छा से काम Yes, ma'am. करोगे, और बाकियों Yes, को भी इससे एक इम्प्रूवमेंट, एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वो अच्छा कर सकता है और उसकी तारीफ हो सकती है तो मैं भी अच्छा कर सकता। ये रिकग्निशन की बात हुई। लेकिन रिवॉर्ड में कंपनी मॉनेटरी लेवल पे आपको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है। जैसे कोई पेड वेकेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब कंपनी आपसे इतनी खुश है कि आपको गोवा के लिए 3 दिन 3 नाइट्स एंड 2 डेज का ट्रिप दे रही है, या फिर आपको रिवॉर्ड के नाम पे कुछ अच्छा सा बड़ा सा गिफ्ट दे दिया। ओके, Yes, सो ma'am. हाँ, या एक मोमेंटो दिया। जैसे आप देखेंगे 10 साल पूरा करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को चेरिश करती है। एक मोमेंटो दिया जाता है कि वी रिकॉग्नाइज योर स्टे
your 10 years of long stay in the organization. We continue to see you further in the organization. तो ये सारी चीजें आपको अच्छा फील कराती हैं, आपको लगता है कि नहीं कंपनी के एचआर पॉलिसी में ये भी है कि हमको वैल्यू फील कराना चाहिए, इससे एम्प्लॉयज को अच्छा फील होता है। ठीक है, समझ में आया कृष्णा चारों पॉइंट? यस मैम। अब Yes, थोड़ा ma'am. सा तुम नोट्स किसी और से ले लो और उसको